Dear student, this is a continuation of the recruitment process lecture part 3. A brief discussion on the job application form, which is used in the recruitment intensively. So, what we have to do to develop and use how to develop and use an application form effectively and efficiently. What are the uses? प्राइमरीली एप्लीकेशन फॉर्म जो बनता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन से ही बनता है सो द की डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपिंग application form is actually based on job description in job specification. But how we use it, we used to know about the applicant education, uh, his her education and professional experience. कि जी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या एजुकेशन की है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, जनरल एजुकेशन जो थी वो कहाँ से है, कितने ग्रेड्स के साथ है, इफ वी डोंट वी नीड दैट एज वेल, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, उसके साथ जो पॉसिबली हम देख रहे हैं विद इन हिज एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के एप्लीकेंट ने कुछ प्रोग्रेस किया है, कुछ ग्रो किया है while he was serving certain at certain organization, or either he was there on the same position for the last some years. So we came to know that from the application form, from the experience, professional experience section, जहाँ पे वो लिस्ट डाउन करता है कि जी कहाँ कहाँ पे आई सर्व एंड व्हाट वाज माय जॉब डिजिग्नेशन एंड व्हाट वाज माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यहाँ पे हम ये भी देख रहे होते हैं कि क्या जो करंट जिस जॉब के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रीवियस वन की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है. And then comes the applicant's employability, employment stability. Is the employment is a stable employee or he is so volatile? If he's so volatile, what are the reasons? The reasons क्या वो उसकी personality ऐसी है, neurotic है, या वो he was in search of uh, such an organization which is in accord with his her personality. So we have to come know this by the initial assessment of the job application form and later on in interviews. And then the last one is the applicant's likelihood of success to get hired in this फॉर दिस पोजीशंस, क्योंकि वहाँ से हम असेसमेंट कर रहे होते हैं कि उसके क्राइटेरियन जो है वो क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहा है कि नहीं, सम एक्स्ट्रा इज देयर और नॉट. We shall consider that person for the next stages or not. So that information we usually get from the application form. So developing an application form is an art as well. Here is one of the example that is from the government of Punjab, well, which is very brief one. We will be discussing some other one, and there will be one in the description of one of the good, some of the good organization of Pakistan as well. जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन करते वक्त, डेवलप करते वक्त, what consideration has to be taken into account. So our law came क्योंकि that is requirement one. The very first one is educational achievement or educational qualification or summary of his education. क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिड द पर्सन क्वालिफाई दैट और नॉट, क्योंकि अगर वो उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा जो हमने जॉब एडवर्टीजमेंट में या थ्रू सर्टेन पोस्टिंग जो है वो हमने बता दिया था, एंड ही इज नॉट qualifying date, so we cannot hire that person despite the fact कि उसकी बहुत सारी अचीवमेंट है whatever there are. लेकिन हम अगर against the law और job post जो है against the advertisement or the job post उसको hire कर देते then it's a violation of law. हाउस अरेंजमेंट, हाउसिंग अरेंजमेंट उसकी हमने देखनी है कि उसकी जो कहाँ पे रेजिडेंस है, रेजिडेंस उसमें कहाँ से कहाँ उसकी रेजिडेंस है, वहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो फार फ्लंग एरिया से है, सो विल वी बी प्रोवाइडिंग द एप्लीकेशन और नॉट. जैसे अरेस्ट रिकॉर्ड, इट इज वन ऑफ द डिक्लेरेशन, देयर शैल बी एन डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे वो ये डिक्लेयर कर दें ऑन ओथ कि जी I have never been arrested for any criminal things. I have no such record.
because if a person with a criminal record came into our organization as an employee, so कल को कोई fraud या कोई fraudulent activity हो सकती है, we cannot have that thing कि जी इस बंदे के तो, और हम उसके इंफॉर्मेशन में देख लें कि जी इसके इंफॉर्मेशन में तो हमने इनसे ये डिक्लेरेशन ली ही नहीं, या उससे कोई कभी पूछा भी नहीं कि तुम्हें कोई सेंटेंस हुआ है, कोई अरेस्ट आपका हुआ है किसी इशू पे या नहीं. Notification in case of emergency means that if something happened to that person to whom we are going to notify, so there shall be a provision in a segment जहाँ पे उसकी जो next of kin है या whoever the person want to nominate, that in case of emergency that person shall be contacted. मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप उसने लिस्ट डाउन की होती हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि किन किन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. उन ऑर्गेनाइजेशंस को फिर हमने देखना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं मैलिफाइड एक्टिविटीज में, कहीं लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटी में, लॉ से इन कंट्रास्ट ऑफ लॉ की कोई एक्टिविटी में तो शरीक नहीं है. If he is a member of such organization which is involved in criminal acts, in law breaking things, then it's a serious concern for us. और फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्टनेस है वो हमें पता लगनी चाहिए कि इज दिस पर्सन हैव एनी डिसेबिलिटी, so we can have consequent preparation for that person if that person has got hired, because if we didn't have that preparation in advance, so here the person can bring us to the court of law. मैरिटल स्टेटस क्या है, क्योंकि मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका मैरिटल स्टेटस जो है वो हमें बताएगा कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, उस पर कोई लॉ सूट तो नहीं चल रहा होता, उसके पर्सनल उसके उस कहानी में सिंगल पेरेंट तो नहीं है. सिंगल पेरेंट है तो फिर उसके और भी इश्यूज हैं. सो वी हैव टू कीप दोज थिंग इन कंसिडरेशन एज वेल. टू स्टेजेस प्रोसेस होता है. सबसे पहले देखते हैं कि जी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन रिव्यू होती है, इंटरव्यूज, टेस्टिंग, वो सारी चीज़ों से जब हमें पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज ओके विद इट, then we said that this person has qualified the position. So फिर हम कहते हैं कि now this person shall be given a conditional job offer. Why conditional? क्योंकि condition के probationary period में हमें पता चल जाएगा कि this person जिसको हमने assess किया through different tests and interviews and all those stuff and बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो उसके ज़रिए हमने टेस्ट किया, तो क्या हमारी जो टेस्टिंग थी उसकी जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी अपनी एबिलिटीज थी, उसके मुताबिक ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं. सो यूजुअली दिस प्रोबेशन पीरियड मे बी 3 months to 12 months or to even to the 2 years as well. So that comes के जी कितने वक्त तक के लिए हम उसको कंडीशनल जॉब ऑफर देते हैं. और कंडीशनल ऑफर जब वो पूरा कर जाता है, उसमें सारे जो प्रोफेशनल पीरियड है वो अबाव एवरेज या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे चला जाता है. सो वे देन कैन हैव a permanent full job offer to that person. So we have to there are some acceptable question once conditional offer is met. Do you have any responsibility that conflict with the job vacancy? जिस जॉब को हमने दे दिया है और वो उस जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसमें दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड एट योर प्रेजेंट एड्रेस, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग फॉर दिस कंपनी. ये इसलिए होता है ताकि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम असेस कर सकें. क्योंकि इफ वी डिडंट गो फॉर सच क्वेश्चंस तो हमें पता नहीं लगेगा और हमेशा कुछ networking हो रही हो beneath the surface, and that may be harmful to the organization as well. Do you have any physical defect that would prevent you from performing certain jobs where to your knowledge vacancies exist? So ये कुछ information हमें चाहिए होती है कि क्योंकि हैंडीकेप होने की सूरत में या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होने की सूरत में वो बंदा वो जॉब परफॉर्म कर सकेगा या नहीं. Do you have adequate means of transportation to get to work? Because if you live, you are living so बहुत
दूर रह रहे हैं, सो इन दैट केस जो है आने का क्या मसला होगा? ठीक है जी। और हैव यू हैड एनी मेजर इलनेस ट्रीटेड और अनट्रीटेड इन द पास्ट 10 years? कोई वायरल, कोई जैसे कहना पैंडेमिक का टाइप की चीज़ तो कोई है नहीं जो किसी दूसरे को लग सकती है, कोई ऐसी बीमारी जो कि दूसरों को इशू बन सकती है? हैव यू एवर बीन convicted of a felony or do you have a history of being a violent person? ये हमें इसलिए करना है ताकि जो नेग्लिजेंट हायरिंग है और रिटेंशन चार्ज है वो हम पे ना आए। क्योंकि ये सिचुएशन वो होती है कि अगर हमने ये नहीं पूछा कि आर यू हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और फेलोनी, हमने कोई कंट्रा लॉ काम तो नहीं किया, अगर वो डिक्लेयर करते कि जी मैंने नहीं किया और कल का नाम कोई काम हो जाता है तो हम वी कैन नॉट बी चार्ज विद द नेग्लिजेंट hiring. And what is your educational background? Information required here would depend on the job related requirement of the position. So when all these come, these are in yes, so we can offer the job to the person. और उसके बाद जो है we can have the after certain period you will have the full job at your disposal. So that was about the application, a job application form, and we have to concern much more about the personal information provided by that person. सो इट इज़ ऑफ की कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्या हम वो इंफॉर्मेशन उससे थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने डेवलप किया है वो ले रहे हैं या नहीं। अगर नहीं ले रहे हैं सो व्हाई इज दिस सो, अगर ले रहे हैं तो क्या वो हमारे यूजफुलनेस यूज क्या है या नहीं। सो इट्स अ वेरी की कि जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने डेवलप करना है इट शैल बी एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। along with that there shall be certain legal consideration। ठीक है जी। जॉब एकोमोडेशन की बात हुई है, जो कि डिक्लेरेशन ऑन ओथ की बात है, about the information provided about the criminal record and proceedings and etc. So those legal consideration is the shall be there कि हम negligent hiring के चार्ज से ना हो कि कल को कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज न करें कि जी आपने जब किसी बंदे को हायर करना था यू डिडंट चेक दियर arrest record or criminal proceeding or pending against 8%, you didn't take those into consideration. Now you are also part of that his crime. So that was a brief discussion about the application, and in the description I'll provide some of the good some links to the good and effective application form as well. Thank you.